Okay, so now that we are clear with the formulae, we are ready to start with individual series in direct, shortcut and step deviation method. तो पहले direct method कर लेते हैं. So find average of the following individual data using direct method. Add all the variables divided with number of observations. So average or mean, that is x bar, can be calculated using sigma x upon n. I told you to write down small n instead of capital N because small n means sample. Okay, so you add all these values and you divide it with total number of items, that is 10, and you get 9.5, that is the average. Now here we are not given any unit. What is this, like marks or what this data is? So we will just write 9.5. I will recommend you to write down units in front of it because average किसी ना किसी चीज़ का तो निकाला जाता है ना, तो we are not given any unit for this example. We will write 9.5 units. So we summed up all the values using sigma x, that is the variable. We divided them with number of items or number of samples, that is 10, and we got average 9.5, that is mean. One more question for direct method in individual series. So here we have a serial number and we have income of 10 different families. So family 1 earns this much, family 2 earns this much. So serial number of the families and their income level in front of them. So this data needs to be averaged out because we can't remember income of each and every family. So the total of all the income is coming out to be 1560, right? So 1560 divided with number of families, that is 10. 1560 divided by 10, 156 rupees is the average of this data. So that's how you use direct method for individual series. Okay. Now shortcut method. For shortcut method, you assume mean by yourself. So let's suppose you are given this data, serial number and height of students. So रोल नंबर 1 हैज़ दिस मच हाइट, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, 4 की इतनी, 5 की इतनी, 6 की इतनी, ठीक है. छोटे बच्चों की हाइट इतनी होती है, जो लोग फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं उनकी हाइट इतनी होती है सेंटीमीटर्स में अगर हम मेजर करते हैं तो फाइन. और सेंटीमीटर में दे रखी है बच्चों की हाइट, यहाँ हमें ये सेंटीमीटर्स में ही दे रखी है. इसमें से एज्यूम कर लो जो आपको एज्यूम करना है. जनरली कहा जाता है सेंटर नंबर को वैसे तो मीन एज्यूम करना चाहिए व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. It's up to you. If I were to solve this question by myself, then I would have taken assumed mean either I would have taken 70 to simplify the calculation, to be very honest. मेरा काम बहुत आसान हो जाता अगर मैं 70 ले तो 69 से थोड़ी सी कैलकुलेशन एडवांस हो जाएंगे. नाउ व्हेन यू हैव एज्यूम्ड ऑन योर ओन की मीन का आंसर ये निकल के आएगा, तो जो डेविएशंस हैं बाकी नंबर से वो उसके लिए अलग कॉलम बनाओ, उसको नाम दोगे स्मॉल डी. 64 माइनस 69 माइनस 5, 59 minus 69 minus 10, 67 minus 69 minus 2, 69 minus 69 0, 65 minus 69 minus 4 and so on. We've calculated the deviations. Add up the deviations and you know the formula already, everyone. So assumed mean plus sigma d upon n. Assumed mean was 69 and you summed up the deviations coming out to be 21. Number of observations are 7. So you can easily solve it out, and 72 centimeter is coming out to be the average height over here, right? Here okay, you also okay minus में total है. I thought it's in plus 21. My bad, it's minus 21. When you add it, it's minus 20. ठीक है. तो ऑल दो फॉर्मूले में तो ऐड ही होता है बट क्योंकि टोटल माइनस है तो वो माइनस ही हो जाएगा ना फिर. सो एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन होता है. तो एज्यूम मीन इज हाउ मच 69, but the total is coming out to be minus 21. You won't do this error when you will solve it on your own, right? तो आपको पता होगा यहाँ minus 21 है, जनरली प्लस में आता है, that's why I plus the value. Okay, so it's 21 minus 21 है ना, तो minus 21 upon में total is you subtract it, that's 66 centimeter. 69 minus 3 हो जाएगा, that is 66 centimeters. Another question for shortcut method in front of all of you. You are given serial number and you are given marks. Again we have taken average, assume mean or average to be 65. So subtract the other numbers with this assumed mean. 43 minus 65 is minus 22 and so on. So these numbers are to be subtracted from this assumed mean in short, and you calculate the deviation. Again apply the same formula, again it's in negative minus 24, ध्यान रखना ठीक है, minus 124. Assumed mean plus sigma d upon n. Assumed mean is 65, right? 65 आपने assumed mean लिया है, यहाँ पे ये assume कर लिया आपने mean, and minus में आ रहा है ये 124, तो minus 124 divided with
10, तो 65 माइनस 12.4 डिवाइड करोगे तो ये आएगा ना 65 माइनस 12.4 हो जाएगा ये, दैट विल गिव यू 52.6 मार्क्स इज द एवरेज. ओके सर. नाउ स्टेप डेविएशन इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ शॉर्टकट मेथड जो आपने भी पीछे देखी. तो स्टेप डेविएशन में शॉर्टकट वाला काम तो करना ही है मीन निकालने के लिए, दैट इज एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, इतना तो है ही. बट डेविएशन जो है उसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके एक नया कॉलम बनाना है, वो डी डैश होगा. फिर उसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो सी से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस इज नथिंग बट स्टेप डेविएशन मेथड. तो इसमें से एज्यूम किया 69, डी वाला कॉलम निकाला 64 माइनस 16 माइनस 5 एंड सो ऑन करके. डी डैश निकालने के लिए इनमें से कोई कॉमन फैक्टर देखो, मेरे हिसाब से तो कोई बन नहीं रहा, मैं तो 1 लूँगा, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पर 2 ले लिया. ठीक है, कॉमन 5/2 इज 2.5 पॉइंट्स में आ रहा है, तो मर्जी आपकी है, 1 ले सकते हो. बट अगर कोई कैलकुलेशन अच्छी है तो यू कैन मूव 1 स्टेप अहेड. 2.5 एंड 5 1 0 2.5 कैसे आया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज योर कॉमन फैक्टर. ठीक है, 2 से सबको डिवाइड कर दिया. 1 से डिवाइड करने का वैसे कोई फायदा है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वो शॉर्टकट मेथड ही है. तो अगर स्टेप डेविएशन क्वेश्चन में आ भी जाता है और ऐसा कोई क्वेश्चन है तो एक कॉमन फैक्टर ले लिया करो, कुछ भी लो पर ले लिया करो, 2 ले लो बेशक बट ले लिया करो, ताकि जैसे यहाँ पर लिया है कि स्टेप डेविएशन का मतलब समझा पाओ. तो दिस इज माइनस 10.5 टू बी पुट ओवर हियर एंड n इज 7 टू बी पुट ओवर हियर. कॉमन फैक्टर आपका 2 था टू बी पुट ओवर हियर, a आपका 69 था, तो इट विल बी 69 प्लस ये मैं नेगेटिव में हो जाएगा तो मैं नेगेटिव ही लिख देता हूँ, माइनस 10.5 डिवाइड विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 2. जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है ना, 69 प्लस ये माइनस ही हो गया, मैंने सिंप्लीफाई करके पहले लिख दिया था. 10.5 अपॉन 7 इंटू 2 एंड यू आर गेटिंग 66 सेंटीमीटर. ठीक है सर. सो ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, ये तो खैर सेम ही है, वही आ गया ये तो. ठीक है, ये वही है ना. हाँ ठीक है, एक इतने सफिशिएंट है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज. अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड होमवर्क दूंगा इंडिविजुअल सीरीज में. ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको डायरेक्ट मेथड से मैं होमवर्क दूंगा, शॉर्टकट से दूंगा और स्टेप डेविएशन से दूंगा. जब इंडिविजुअल सीरीज हमारी स्ट्रांग हो जाएगी देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्क्रीट सीरीज. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ.